Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the second session of data communication. The topics covered are the OSI protocol architecture, TCP reference model, TCP IP network architecture, application layer, transport layer, internet layer, network interface layer, TCP IP protocol architecture model, and the difference between OSI and TCP IP reference model. First of all, the OSI protocol architecture. The OSI model is based on a proposal developed by the International Standards Organization as a first step toward international standardization of the protocol used in the various layers. Means OSI model, International Standard Organization मीन्स ISO के थ्रू डेवलप किया गया है, जो कि फर्स्ट मॉडल था जिसमें कि लेयर्स का यूज़ किया गया था. द मॉडल इज कॉल्ड द ISO OSI मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. इसको हम ISO OSI मॉडल कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. Its main objectives were to allow manufacturers of different systems to interconnect equipments through standard interfaces. मीन्स इस मॉडल के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक दूसरे से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें वाया एक स्टैंडर्ड इंटरफेस के थ्रू. सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज अलो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू इंटीग्रेट वेल एंड बी पोर्टेबल ऑन डिफरेंट सिस्टम्स. मीन्स second objective was to integrate software and hardware so that they are portable to different systems. In the OSI protocol architecture, we have different layers. Basically, the ISO OSI reference model is break down into 7 layers, different 7 layers. Working of each layer is different. Means each layer perform different operations. In this model we have 7 layers. First one is physical layer, second one is data link layer, network layer, transport layer, after that session layer, presentation layer, and at the end application layer. The main aim of OSI architecture to use layers is that so that we can give different functionality to different layers. Means we can easily handle any task by a separate layer. If we use only a combined architecture, then we have we face many problem to handle these type of functionality. So we break down these model into different layers so that we can provide different functionality to different layers. This is the OSI protocol architecture diagram. Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and at that physical layer. The first 3 layers is known as subnet protocols. This is transmission medium, means through which we can send data. This can be guided or unguided as well. Here we have again application layer, presentation, session, transport, network, data link layer, and physical layer. Application layer
presentation layer, session layer, and transport layer. These are directly connected with each other. For example, if one system want to send a data to another system, first it face application layer, then presentation layer, after that session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. After that it send data to the transmission media. For example, wires, satellite, Wi-Fi, extra. And at the second system, it data phase first physical layer, after that data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and at the end it will uh, send to the application layer. First one is the physical layer in OSI protocol architecture. Physical layer defines electrical and mechanical specification of cables, connectors, and signaling options that physically links two nodes on a network. मीन्स फिजिकल लेयर बेसिकली डील करता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ केबल्स. मीन्स कौन कौन सी हम केबल यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, सिग्नलिंग कैसी यूज़ हो रही है, और बेसिकली इट डील्स विद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. एट दिस लेयर डेटा इज used in bit format. Means data at this layer data is in bit formats. Second layer is the data link layer. The main task of the data link layer is to provide error free transmission. The data link layer creates and recognizes frame boundaries. This can be accomplished by attaching special bit pattern to the beginning and end of frame. Means data link layer का काम होता है एरर फ्री ट्रांसमिशन करना. मीन्स जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, उसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए. वो काम डेटा लिंक लेयर करती है. दूसरा मेन एम डेटा लिंक लेयर का है फ्रेम को क्रिएट करना और उसको आइडेंटिफाई करना. फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा लिंक लेयर स्पेशल बिट्स पैटर्न यूज करती है फ्रेम के स्टार्टिंग में और फ्रेम के एंड में, ताकि डेटा लिंक लेयर उस फ्रेम को आइडेंटिफाई कर सके कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है. At the same time, data link layer is also a control flow control. Means it also handles flow control. And main responsibilities of data link layer are error control, framing, and flow control. Flow control basically that situation in which one system send data very fastly and second one is not able to handle that data at that speed. So packets start losing. मीन्स जब दो सिस्टम कोई दो सिस्टम आपस में डेटा को सेंड करते हैं, तो अगर एक सिस्टम की स्पीड दूसरे सिस्टम से ज़्यादा है डाटा सेंड करने की और दूसरा सिस्टम उस डेटा को उसी स्पीड से गेट नहीं कर पाता है, तो उस केस में पैकेट्स लॉस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल. उस कंडीशन में बेसिकली हम बफर्स का यूज़ करते हैं. हम सेंडर साइड पे भी एक बफर क्रिएट करते हैं एंड रिसीवर साइड पे भी एक बफर क्रिएट करते हैं, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस हो सके और पैकेट लॉस्ट ना हो. तो डेटा लिंक लेयर के मेन एम ये होते हैं. After that, the network layer. The data link layer is responsible for delivery on a hop
The network layer ensures that each packet travels from its source to destination successfully and efficiently. Means network डेटा लिंक लेयर का काम होता है किसी भी पैकेट को दूसरे नोड पर ट्रांसफर करना, और नेटवर्क लेयर ये इंश्योर करता है कि जो भी पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन पे वो सक्सेसफुली और एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो। मींस पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हैंडल करने का काम नेटवर्क लेयर के थ्रू किया जाता है। नेटवर्क लेयर रूट डिसाइड करने का काम भी करती है। मीन्स ये बेस्ट रूट चूज करती है बिटवीन डिफरेंट रूट्स, जिससे कि हम डेटा को फास्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, और वी कैन से ऑप्टिमल पाथ थ्रू विच वी कैन सेंड डेटा। A key design issue is determining how packets are routed from source to destination. Means एक की इशू ये होता है कि हम कौन सा रूट चूज करें सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा को सेंड करने के लिए। Routes can be based on static tables that are wired into the network and rarely changed. Means route स्टैटिक टेबल्स के थ्रू भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें कि टेबल्स को नेटवर्क में लोड कर दिया जाता है और वो चेंज नहीं होते। स्टैटिक का बेसिकली मीनिंग जो चेंज नहीं होता है। दे कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड एट द स्टार्ट ऑफ ईच कन्वर्सेशन, फॉर एग्जाम्पल अ टर्मिनल सेशन। और बेसिकली स्टैटिक रूट्स को हम कन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टर्मिनल सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले ही उस टर्मिनल सेशन में हम कह सकते हैं उस टर्मिनल सेशन तक डेटा सेंड करने के लिए पाथ डिसाइड कर लेते हैं। फाइनली दे कैन बी हाईली डायनेमिक, being determined anew for each packet to reflect the current network load। और रूट डायनामिक भी हो सकता है। मीन्स जब भी कोई हमें पैकेट सेंड करना है हम एक डिफरेंट रूट चूज कर सकते हैं उसको सेंड करने के लिए। इससे नेटवर्क लोड कम हो जाता है क्योंकि हम रूट को डायनामिक चूज कर रहे हैं। मीन्स जब हमें पैकेट सेंड करना है तब हम रूट को डिसाइड कर रहे हैं। तो नेटवर्क लेयर के थ्रू हम ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। मींस नेटवर्क लेयर रूट डिसाइड करती है। रूट दो टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिक रूट एंड डायनेमिक रूट। स्टैटिक रूट में हमारा पाथ फिक्स्ड होता है, जितने भी हमें पैकेट सेंड करने होते हैं वो सब उसी रूट से सेंड किए जाते हैं, और उस रूट को भी हम डेटा सेंड करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। और डायनेमिक रूट्स में हम ईच पैकेट जब भी हमें सेंड करना होता है तब रूट को डिसाइड करते हैं। तो नेटवर्क लेयर ये सब काम करता है। आफ्टर दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर। The basic function of the transport layer is to accept data from the session layer, split it up into smaller units if need be, pass these to the network layer and ensure that pieces of all arrived correctly at the other end. Means transport layer basically session layer से data accept करता है, उसको स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक करता है एंड आफ्टर दैट उसको नेटवर्क लेयर पे सेंड कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक और काम करता है, जो भी डेटा पीसेस की या फॉर्म यूनिट्स की फॉर्म में आ रहा है वो करेक्टली सेंड या रिसीव हो रहा है या नहीं, वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही चेक
करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स लोकेशन एंड मीडिया इंडिपेंडेंट एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर सर्विस to session and upper layers. Means transport layer location and media independent end to end data transfer की सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेयर्स को। फॉर एग्जांपल सेशन लेयर्स या ट्रांसपोर्ट लेयर से अपर लेयर्स को। एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर का मतलब है कि एक सिस्टम से दूसरे एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे डाटा सेंड करना। नाउ द सेशन लेयर। द मेन टास्क ऑफ द सेशन लेयर इज टू प्रोवाइड सेशन एस्टेब्लिशमेंट, session release, orderly or abort, synchronization, data exchange and expedited data exchange। means सेशन लेयर ये फीचर्स या ये टास्क परफॉर्म करती हैं। सेशन को क्रिएट करना, सेशन को रिलीज करना, सिंक्रोनाइजेशन करना बिटवीन डेटा एक्सचेंज करना या डेटा को फास्टली एक्सचेंज करना। सबसे पहले सेशन क्या होता है? सेशन का मतलब है किसी भी यूज़र को या उसके डेटा को आइडेंटिफाई करना। सेशन को दो रीजंस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई यूज़र एंड टू शेयर द डेटा। जैसे कि आप कभी लॉगिन करते हैं अपने आईडी के लिए तो एक सेशन क्रिएट होता है। उस सेशन के दौरान सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करके रखता है। सेशन रिलीज मीन्स सेशन को फिनिश करने का काम भी सेशन लेयर करती है। जब आप लॉग आउट करते हैं किसी भी वेबसाइट से या अपनी ईमेल आईडी से तो वो सेशन रिलीज होता है। सेशन रिलीज दो टाइप से हो सकता है, ऑर्डरली या अबॉर्ट। अबॉर्ट मीन्स फोर्सली सेशन को फिनिश करना एंड ऑर्डरली मीन्स नॉर्मल वे में सेशन को रिलीज करना। आफ्टर दैट सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स तालमेल। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कोई डेटा सेंड कर रहे हैं और वो 2 आवर्स का डेटा है, मीन्स डेटा को ट्रांसफर होने में 2 आवर्स लगने हैं एंड अज्यूम करते हैं कि 1 आवर तक डेटा सेंड होने के बाद सिस्टम शट डाउन हो जाता है। आफ्टर डेट अगर सेशन लेयर नहीं है हमारे पास तो फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम पे अगेन डेटा सेंड होना स्टार्ट होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर बार बार यही सिचुएशन आती रहेगी तो कभी भी हमारा डेटा सेंड नहीं होगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं। मीन्स सेशन लेयर कुछ टाइम बाद डेटा जहाँ तक डेटा सेंड हुआ है वहाँ पर चेक पॉइंट्स इंसर्ट करती रहती है और इन बिटवीन अगर कोई इमरजेंसी होती है या सिस्टम शट डाउन होता है तो लास्ट चेक पॉइंट से डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और डेटा फास्टली सेंड होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन का काम भी सेशन लेयर करती है। आफ्टर दैट डेटा एक्सचेंज मीन्स सेशन between session it can send or exchange the data between the systems. After that expedited data exchange means to exchange the data fastly is also done by session layer. The session layer allows user on different machines to establish sessions between them. मीन्स सेशन लेयर के थ्रू हम डिफरेंट यूज़र्स को जो कि डिफरेंट मशीन्स पर हैं
उनके बीच में भी सेशन क्रिएट कर सकते हैं। A session might be used to allow a user to log into a remote time sharing system or to transfer a file between two machines. मीन्स सेशन लेयर के थ्रू हम किसी भी सिस्टम पर रिमोटली लॉगिन भी कर सकते हैं और डिफरेंट मशीन्स के बीच में फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर सेशन लेयर। Now the presentation layer. The presentation layer is concerned with the syntax and semantics of the information transmitted. Means presentation का layer किसी जो भी information transmit की जा रही है उसके syntax और semantics को check करना होता है। A typical example of a presentation service is encoding data in a standard agreed upon way. Means जब हम डेटा सेंड करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म में, या हम कह सकते हैं डिफरेंट एनकोडिंग यूज कर सकते हैं किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए। उस केस में जो भी एनकोडिंग डिसाइड की गई है उसको चेक करने का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। द प्रेजेंटेशन लेयर मैनेजेस दीज एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड कन्वर्ट from the representation used inside the computer to the network standard representation and back. Means एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को चेक करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करती है। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि डेटा हमारा एस्काई फॉर्म में आ रहा है और हम उसको यूनिकोड फॉर्म में रीड कर रहे हैं। मीन्स एनकोडिंग सेम होनी चाहिए और ये चेक करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करती है। नाउ द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर supports functions that control and supervise OSI application processes such as start, maintain, stop application, allocate, deallocate OSI resources, accounting, checkpoint and recovering. It also supports remote job execution, file transfer protocol, message transfer and virtual terminal. Means एप्लीकेशन लेयर किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना, मेंटेन करना या स्टॉप करने का काम करती है। उस प्रोसेस को रिसोर्सेज अलोकेट करना, डीअलोकेट करना, उस प्रोसेस को अकाउंटिंग करना, चेक पॉइंट्स इंसर्ट करना, किसी भी इमरजेंसी से रिकवरिंग करना, ये सब काम एप्लीकेशन लेयर करती है। इससे अलग रिमोट जॉब, किसी भी जॉब को रिमोटली एग्जीक्यूट कराना, फाइल को ट्रांसफ़र करना, मैसेज को ट्रांसफर करना या वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करने का काम भी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू किया जाता है। This is all for the application layer. This is the end of part 1 of session 2 of data communication. We will cover the next topics in the second part of this session. Thank you. Happy learning, we learning.